Good morning, everyone. What had we discussed in the previous class? We discussed methods of recording depreciation. We discussed the concept of accumulated depreciation. Any doubts, anyone up to there? No. Okay, good. So we were writing the steps. We had done illustrations to see how we treat in accounting when an asset is bought, when depreciation is charged, and when the asset is sold by both the methods of recording depreciation, when the depreciation is charged to asset and also when depreciation is charged to accumulated depreciation or provision for depreciation account. We were writing the steps of accounting treatment at the time of sale of asset. First two steps we had already discussed and you had written. First was charge depreciation up to the date of sale. If accumulated depreciation account is maintained, transfer accumulated depreciation till date of sale to asset account. Entry is accumulated depreciation account debit to asset account. Second was post the sale of asset. The entry is bank account debit or buyer debit. In case it is a credit sale, then buyer debit with sale value. Loss on sale of asset account debit if there is a loss on sale. To asset account always with book value. And to gain on sale of asset account if there is gain on sale. Okay. So in asset account, on credit side, we write by bank account, and in the amount column, we write the sale value. Up to here, we had discussed and you had written. Now write the third step. Calculate gain or loss on sale. How to calculate it? Selling price minus book value on the date of sale. If this value comes positive, that means there is a gain. We have sold the asset at a higher price than its book value. On the other hand, if this value comes negative, then there is a loss on sale. Means sale value is less than book value of the asset. If gain, post in asset account on debit side. Debit side पे लिखो asset के account में, in that case to gain on sale of asset account. जो भी asset होगा वो आ जाएगा asset की जगह. Similarly, if loss, then post in the asset account on credit side. वहां पे क्या लिखेंगे? By loss on sale of asset account. यहां तक लिख लो. लिखने के बाद बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. Written. Okay. Now in examination, sometimes journal entries or ledger accounts may be asked in questions from any chapter. For example, हमने रेक्टिफिकेशन का चैप्टर किया था, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो हमने किए जर्नल एंट्रीज करनी थी उसमें रेक्टिफिकेशन की. ठीक है. लेकिन
रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड आपसे लेजर अकाउंट भी मांगे जा सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाने को कहा जा सकता है क्वेश्चन में, या जिन अकाउंट से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है उन अकाउंट्स के लेजर भी मांगे जा सकते हैं। सिमिलरली अब जैसे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन में हम लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आप जर्नल एंट्रीज दो लेजर बनाने की जगह, ठीक है, या दोनों चीजें भी मांगी जा सकती हैं, जर्नल एंट्रीज एज वेल एज लेजर। सो इन ऑल चैप्टर्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड in all the ways. Once you have learned how to pass journal entries, once you have learned how to prepare ledger accounts, anything can be asked from any of the chapters. Don't be under an impression कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करने को आएंगी, इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो सिर्फ लेजर अकाउंट्स ही बनाने को आएंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हर चैप्टर में दोनों तरह की प्रैक्टिस करते रहा करो। जिसमें जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन ज्यादा हो उसमें 2-3 क्वेश्चन की लेजर्स भी बना लिया करो, जिसमें लेजर्स वाले ज्यादा हो क्वेश्चन उसमें 1-2 क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज भी कर लिया करो, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से आप शुरू कर दो। अभी क्या करना है आपने, जो हमने इलस्ट्रेशंस करी थी अभी 2 और 3 प्रीवियस क्लास में, अब आज होमवर्क में आप उनकी जर्नल एंट्रीज पास करोगे, जर्नल का फॉर्मेट बना के, ओके। Another important thing, you should learn the table of 73. Why 73? कई बार आपको क्वेश्चन में डेट ऐसी दी होती है, आप और किसी भी चैप्टर में हो सकता है, डेप्रिसिएशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसी भी चैप्टर में आपको डेट ऐसी दी हुई है, सपोज मशीनरी खरीदी किसी ऐसी डेट को जहां से ईयर एंड तक का पीरियड लेट अस से 146 डेज आ रहा है। अब 140 उसकी आप टाइमली कैलकुलेशन, पीरियड वाइज कैलकुलेशन कैसे करोगे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए? आपको करना पड़ेगा 146 अपॉन 365। अब ये कैलकुलेशन करके देखो, अगर आप सिंपली कट करने पे आओगे 146 365 तो डायरेक्टली तो माइंड में नहीं आता कैसे कैलकुलेट होंगे, कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट लगती है और बहुत टाइम लग जाता है। 73 के टेबल में 73 5s आर 365, 73 2s आर 146। तो अगर आपको 73 का टेबल आता है तो सिंपली आपको 146 देखते ही एकदम से माइंड में आएगा, ओके 146 अपॉन 365, नेक्स्ट स्टेप में 2/5 हो गया वो, ठीक है। तो इस तरह की कई बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं क्वेश्चंस में, जानबूझ के ऐसी डेट दी होती है कि वो नंबर ऑफ डेज में आ रहा होता है पीरियड, और ऐसा अजीब सा लगता है देखने में कि भाई इसको अब कैसे सॉल्व करें, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कई बार वो पीरियड ऐसा आ रहा होता है कि वो 73 से डिविजिबल होते हैं डेज, ठीक है। तो इसलिए 73 का टेबल आपको याद होना चाहिए, स्पेशली 5 तक, क्योंकि 73 5s आर 365। क्लियर? नाउ वी विल डू सम मोर इलस्ट्रेशंस ऑफ डेप्रिसिएशन, जिनमें से एक में हम ये 73 वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। और नाउ टिल नाउ वी हैव डन इलस्ट्रेशंस where one machine was purchased, depreciation charged for certain time, and then the machine was sold. अब जो इलस्ट्रेशंस हम करेंगे उनमें एक से ज्यादा मशीन भी होगी या एक से ज्यादा एसेट भी होगा, तो कैसे डील करना है, लेट अस सी। I hope this screen is visible. सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो,
वर्किंग नोट्स के लिए 3 लाइन छोड़कर मशीनरी अकाउंट का एक लेजर का फॉर्मेट बना लो। Tell me after making it and then we will start attempting it. Prishita, good morning. Good morning, sir. ये विजिबल है ना स्क्रीन? Yes, sir. लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। वर्किंग नोट्स के लिए 3 लाइन छोड़कर फिर ये लेजर का फॉर्मेट बना लो मशीनरी अकाउंट का एंड टेल मी। Okay, sir. Sir, almost. ओके, लिख लो, पूरा लिख लो फिर बताओ। Okay, sir. Sir, written. ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। पढ़ो इसे। Shefali Aircon bought a machinery for rupees 5 lakh on 1st October 2018. Another machine was purchased on 1st July 2019 for rupees 2 lakh. The first machine was sold for rupees 2 lakh 50,000 on 24th August 2020, and on the same date a new machine was purchased for rupees 3 lakh 50,000. Depreciation is charged at 10% per annum on the cost. Show machinery account for first 3 years. ओके, तो कितनी मशीन्स इन्वॉल्व हो गई इस क्वेश्चन में? एक 5 लाख की खरीदी जो शुरू में, ठीक है। एक और खरीदी हमने 2019 में 2 लाख की, और तीसरी मशीन हमने खरीदी 3,50,000 की 24 अगस्त 2020, ठीक है। और फर्स्ट मशीन हमने सेल भी करी 24 अगस्त 2020, राइट। तो 3 मशीन्स खरीदी हैं जिनमें से एक मशीन हमने सेल भी की है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट मशीन जो हमने खरीदी 1 अक्टूबर 2018, हाउ विल वी शो दिस? So we will charge depreciation at the rate 10% for 6 months. लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले हम उसकी परचेज की एंट्री पोस्ट करेंगे। हाउ? Sir, on debit side of machinery account. Yes. First 1/10/18 By writing date. to bank account. Yes, to बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो M1। M1 क्यों लिखना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा मशीन्स हैं। जिस भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कोई एसेट इन्वॉल्व हो तो उसको नंबर कर देना चाहिए एसेट को 1 2 3 करके, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M1 मींस मशीन 1, अमाउंट में 5 लाख। Sir, written. नाउ 2018-19 वाला जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें और कोई परचेज या सेल हो रही है? No, sir. नो। सो ईयर एंड वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000. और हमने खरीदी कब है? 1st October. तो इसका मतलब कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगानी है? 6 months. So उसका भी half 25,000. वेरी गुड। क्रेडिट साइड 31st March 19, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। Sir, written.
अब बैलेंस कितना बचा है इस मशीन का? 4,75,000. वेरी गुड, लिख लो। By balance carried down 4,75,000. Then write total on both sides 5 lakh. Then debit side 1st April 19 to balance brought down 4,75,000. Sir, written. Now, in the accounting year 2019-20, is any purchase sale taking place? Yes, sir. We purchased another machine on 1st July. Very good. So how will we post that? So on debit side, we will write to bank account and bracket M2. Very good. लिख लो, डेबिट साइड 1st जुलाई 19 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M2 2 लाख. Sir, written. Any other purchase or sale taking place in this accounting year? Sir, no. No. So end of the year we will charge depreciation. Now depreciation also we will show bifurcation M1 and M2. ठीक है, दो मशीन हो गई हैं तो दोनों पे अलग अलग हम डेप्रिसिएशन शो करेंगे इनर कॉलम में. So 31st March 20 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. फर्स्ट मशीन तो पूरे साल के लिए यूज हुई और उस पर एनुअल डेप्रिसिएशन थी 50,000. तो M1 के आगे लिख लो 50,000 इनर कॉलम में. जब भी मल्टीपल मशीन्स हैं हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर हम डेप्रिसिएशन का डिवीजन दिखाते जाएंगे सेपरेटली, किस किस मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी, और डेबिट साइड पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन में वो डिवीजन दिखाते जाएंगे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना आया अलग अलग मशीन का. ठीक है, इससे हमारा क्रेडिट साइड या डेबिट साइड दोनों थोड़ी बैलेंस्ड रहेंगी. अगर हम सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिवीजन भी दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे और बैलेंस कैरिड डाउन में दिखाते हैं फिर डिवीजन, तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा लेंदी होती जाएगी. और M2 पर 2 लाख की जो हमने मशीन खरीदी है इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी हुई? Sir, 3/4 of 20,000, that is 15,000. वेरी गुड. सो M2 15,000. उसके बाद डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट लिख दो अमाउंट कॉलम में 65,000. Sir, written. Now if we see debit side total is 6,75,000 minus 65,000, तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचा? 6,10,000. Yes, by balance carried down 6,10,000. Then write total on both sides 6,75,000. On debit side 1st April 20 to balance brought down. As I told you, अब हम दोनों मशीन्स का अलग अलग दिखाएंगे. M1 का कैसे निकलेगा? पिछले साल इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन था 4,75,000 और इस पर डेप्रिसिएशन लगी है 50,000. सो 4,70,000 माइनस 50,000, M1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन आया 4,25,000. क्लियर? Yes, sir. यहां तक लिख लो पहले.
Sir, written. इसी तरह से अब मुझे बताओ M2 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? पिछले साल 2 लाख की इसकी वैल्यू थी, परचेज वैल्यू, जिसमें से डेप्रिसिएशन कितनी लग गई? 15,000. So तो 1,85,000. वेरी गुड। तो M2 1,85,000 और दोनों का ब्रॉट डाउन टोटल 6,10,000। और इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपके बैलेंस का कैरेट डाउन से मैच होना चाहिए ये पिछले वाले। Sir, written. Now, any purchase or sale taking place in this accounting year? Sir, no. The first machine was sold on 24th August 2020. तो ये 2020-21 वाले ईयर में ही तो आया है ना? तो ये सेल हो रही है इस अकाउंटिंग ईयर में। फर्स्ट मशीन सेल हो रही है, कब सेल हो रही है? Yeah. ऑन विच डेट? 24th August. 24th अगस्त। तो पहले हमें 24th अगस्त तक की क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप एट द टाइम ऑफ सेल, Depreciation. डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है इस मशीन पे, फर्स्ट मशीन पे? 50,000. अब हमें कितने पीरियड की लगानी है? 1 अप्रैल से 24 अगस्त। काउंट करो कितना पीरियड हुआ। ये अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो आ गया, 146 डेज आएंगे अगर आप काउंट करोगे 1 अप्रैल से 24 अगस्त, 146 डेज। ठीक है। सो 50,000 एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 146/365। अब 73 के टेबल अगर आपको याद हो तो 73 2s are 146 एंड 5s are 365। तो ये हो गया 50,000 इंटू 2/5 इक्वल्स ₹20,000। ये लिख लो वर्किंग नोट्स में। Sir, written. 24 अगस्त की जगह 23 या 25 अगस्त भी दिया हो तो भी मोस्टली कैलकुलेशन यही रहेगी। ठीक है। एक का दिन आगे पीछे भी आ रहा हो 146 से या 73 से जो डिविजिबल है एग्जैक्टली, स्टिल यू कैन राउंड ऑफ एंड कैलकुलेट लाइक दिस। क्लियर? Yes, sir. बट नॉट फॉर मोर देन 1 डे डिफरेंस, फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। Okay, तो sir. सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग कर देंगे क्रेडिट साइड पे 24 अगस्त 20 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 20,000। Sir, written. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ऑन द डेट ऑफ सेल? So we calculate loss or gain on the sale. दैट इज थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज पोस्ट द सेल ऑफ एसेट। वो हम कैसे पोस्ट करते हैं? Okay. Sir, we will write by bank account on the credit side. यस, बाय बैंक अकाउंट। और ये सेल हुई है 2,50,000 में, सो बाय बैंक अकाउंट 2,50,000। Now see, the book value, opening value of this machine was, which is being sold, M1, 4,25,000 थी ईयर के बिगनिंग में, जिसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन लग गई, तो बुक वैल्यू कितनी रह गई?
4 lakh 15,000. 4 lakh No, 4 lakh 5,000. 5. 4 lakh 5,000, यस। और ये सेल हुई 2 lakh 50,000 में, तो गेन हुआ या लॉस? Sir, loss. कितना? 1,55,000. यस। तो लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1,55,000। अगर गेन होता तो? So then on debit side we would have written this. Yes, we would have written on debit side to gain on sale of machinery account. But it is a loss, so it will be shown on credit side. Sir, Yes, written. Nandini. Good morning, sir. Good morning. Sir, if ledger is continued on next page, then how to continue it? You can कोशिश करो नेक्स्ट पेज पर आप टोटल के बाद कंटिन्यू करो। जैसे आपने ये 2019-20 वाला टोटलिंग कर दी, क्लोजिंग कर दी, ठीक है। टोटल आ गया 6,75,000 दोनों साइड। अब आपको दिख रहा है कि पेज में 2-3 लाइन ही बची हैं, उनमें नेक्स्ट ईयर की पोस्टिंग्स नहीं आ पाएंगी, तो उन लाइंस को छोड़कर आप सीधे नेक्स्ट पेज पे चले जाओ और टू बैलेंस पहले आप फॉर्मेट बनाओ, ऊपर हेडिंग लिखो, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, सब हेडिंग्स लिखो और सीधे यहां से स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट पेज पे 1,420 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? Okay, sir. Thank you. Yes, sir. यहां तक लिख लिया। उसके बाद सेम डेट पर एक और मशीन परचेज भी हो रही है। ऑन सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 3,50,000। इसे कैसे शो करेंगे? Sir, on debit side we will write to bank account M3. वेरी गुड। तो 24,820 डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M3 3,50,000। Sir, written. Now, any other purchase or sale taking place in this accounting year? Sir, no. No. So end of the year we will charge Depreciation. depreciation. 31st March 21 by depreciation account। अब M1 तो है ही नहीं, वो तो सेल हो गई। M2 थी 2 लाख वाली, इस पर एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000. 10%. 20,000, वो लिख लो। M3 अभी हमने परचेज की है 3,50,000 की। किस डेट पे? 24 अगस्त। अब 24 अगस्त से 31 मार्च तक कितने डेज हुए? सर ये तो काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करने पड़ेंगे और ये आएंगे 219। ठीक है। 3,50,000 का 10% कितना हुआ? 35,000 फॉर द होल ईयर। ठीक है। अब 35,000 तो इसके एनुअल डेप्रिसिएशन हो गई इंटू 219 बाय 365। अब फिर से आपका 73 का टेबल काम आएगा। 73 थ्रीज आर 219, तो ये हो जाएगा 35,000 इंटू 3/5 इक्वल्स ₹21,000। लिख लो वर्किंग नोट्स में। सर रिटर्न। और एक और सिंपल सा लॉजिक है। 24 अगस्त को ही पहले वाली सेल की थी, उसकी कैलकुलेशन हमने की है 2/5 आई। तो अगर 24 अगस्त तक ईयर का 2/5 पार्ट निकल गया तो 24 अगस्त के बाद बचे हुए ईयर का कितना पार्ट रह गया? 3/5। तो ये लॉजिक भी लगा सकते हैं हम। यस। ठीक है। 21,000। सो M3 लिखो क्रेडिट साइड पे 21,000 और टोटल दोनों मशीन की मिलाकर डेप्रिसिएशन हो गई 41,000।
सर रिटर्न। उसके बाद हम बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, डेबिट साइड में टोटल देखो कितना है, 9,60,000। उसमें से ये क्रेडिट वाले जो टोटल है, इसका टोटल तो 4,25,000 होगा, फर्स्ट मशीन के जो एंट्रीज थी, प्लस 41,000, तो डिफरेंस आया 4,94,000। चेक कर लेना ये कैलकुलेशन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल ऑन बोथ साइड्स 9,60,000, डेबिट साइड पे 1,421, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,94,000। रिटर्न सर प्लीज वेट। हाँ श्योर, नहीं लिखा होता तो बता दिया करो, बस नो बोल दिया करो, आई विल वेट लॉन्गर। बस मुझे ये लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो आप बोल रहे हो यस सर और आवाज नहीं आ रही मेरे तक, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बीच में जब थोड़ा गैप आ जाता है। Okay, sir. Sir, actually, I was just checking my calculations. हाँ हाँ श्योर, गो अहेड। Sir, written. हाँ ठीक है, लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेशन Yes, sir. ठीक है। कैलकुलेशन आप साथ साथ भी चेक कर सकते हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको रियलाइज हो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी कहीं पर, यू कैन टेल मी लेटर ऑन व्हाट्सएप, तो फिर मैं अगर उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी आई विल डू द करेक्शन एंड टेल यू। ठीक है। Okay, sir. क्वेश्चन हैड आस्क्ड अस टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, तो 3 years का प्रिपेयर हो गया, बस ये सॉल्यूशन यहीं पर एंड। 3 years का पीरियड कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, Okay. आपने देखना है स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 2018 से। पहली एंट्री जो हमने पोस्ट की थी 2018, 18 + 3 = 21, तो जैसे ही 1 अप्रैल 21 का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, मतलब 3 अकाउंटिंग ईयर्स की हम पोस्टिंग दिखा चुके हैं। क्लियर? Yes, sir. अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो और 2 फॉर्मेट्स बनाओगे आप, एक व्हीकल्स अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन ये लिख लो, क्वेश्चन लिख के मुझे बताओ, फॉर्मेट्स आप बाद में बनाना, नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे इसे, क्वेश्चन अभी लिख लो आप। Okay, sir. रिटर्न No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये क्वेश्चन लिख लेना और 2 फॉर्मेट्स बना लेना, एक व्हीकल्स अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड वी विल अटेम्प्ट दिस इन द नेक्स्ट क्लास।
ठीक है? Okay, sir. Taken the screenshot? Yes, sir. Okay. So we stop here for now. Thank you. Thank you, sir.